लोगों ने लर्न किया है? प्राची ने किया है, और किसने किया है? विपाशा। हैंड रेज कीजिए बेटा। मॉडल इनटू रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड टू मास मूवमेंट। ये 5 आपको लर्न करने थे, और मैं बोली थी कि कॉपी एंड श्वेता राज भी कॉपी एंड पेन के साथ आप लोग बैठोगे, ठीक है? टेक आउट योर कॉपी। कैमरा ऑन कीजिए बाबू। सिर्फ कॉपी दिखाइए, मुझे कोई ये नहीं है, सिर्फ कॉपी आप दिखा सकते हैं। Now write the question. Start writing question. In which year Morley Minto reform was introduced? In which year Morley Minto reform was introduced? Which year first Morley Minto reform was introduced? Second, what was the purpose? What was the purpose? What was the feature? What was the feature? Next, right to mass movement. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, ये देखकर आप अंदाजा लगा लीजिएगा। Repeating once again. Repeating once again. हाँ, चलो रिपीट कर लेंगे। In which year Morley Minto reform was introduced? Morley Minto reform was introduced. ये देखकर समझ जाओ, Morley Minto reform was introduced. Next question, only आप आंसर लिखो। Next question, what was the purpose? आपको याद होगा पेज 5 से, ठीक है? M4 फॉर्मूला, वो लाइन आप लिखोगे। What was the purpose? It was introduced to pacify the moderates. Next, what was the feature? Yes, what was the feature? कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिए, फीचर क्या था? फीचर क्या था? Muslims were granted separate electoral. Yes. Muslims were given separate electorate. Very good. Next, two mass movement. Two mass movement में क्या आंसर लिखेगा बेटा? दो नाम बताओ। Non-cooperation movement, civil disobedience movement. and civil disobedience. Yes. Listen. कल मैंने क्विट इंडिया आपको याद करने नहीं दिया था, तो आपको क्विट इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख दोगे, वैसे क्विट इंडिया भी मास मूवमेंट है। आपको लिखना है आज दो नाम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, इस साइड में दिखाती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, what was the
another name of civil disobedience movement. What was the name of civil disobedience movement? Is it visible or not? Is it visible? No, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्यों? अच्छा सुन लिखिए सुन कर लिखिए. In which year modern Minto reform was introduced? In which year modern Minto reform was introduced? आपने कहा 1909. 1909. चलिए आंसर लिखते जाइए. 1909. Next one, what was the purpose of introducing this reform? लिखिए, what was the purpose of introducing this reform? Answer लिखिए, this reform was passed to pacify the moderates. This reform was passed to pacify the moderates. Next. मैम सिर्फ अगर टू पैसिफाई द इंडियंस लिखेंगे तो सही है. No, मैंने कहा था बाकी सारे नहीं. मैम अगर सिर्फ टू पैसिफाई द इंडियंस बाकी सारे रिफॉर्म में इंडियंस लिखना, मगर मॉर्निंग मिंटो में मॉडरेट्स को खुश करने के लिए किया गया था. मॉडरेट्स लिखोगे. इसका मैंने M4 फॉर्मूला भी दिया है. M for morning, M for minto, M for it was passed to pacify the moderates. 3M आया, 3M. और चौथा है Muslims were given separate electorate. ठीक है, M4 फॉर्मूला. और बाकी दोनों में लिखिएगा आप Muslims, sorry, it was passed to pacify the Indians. चलिए, what was the Muslims were separate electorate. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट है name to mass movement. आंसर लिखिए, non cooperation movement and second civil disobedience movement. Next, what was the another civil disobedience movement? इसका आंसर होगा सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह. दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह, जिसमें लिखा है क्वेश्चन 3 को रिपीट करना. क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द फीचर ऑफ मॉडर्न रिफॉर्म. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से. पहला लिखिए when was this movement started? when में क्या होगा? 19 बोलो. 1920. Yes, 1920. This movement was started on 1920. Next question लिखो, who? Next question लिखो, who? Yes, पूरे सेंटेंस में आंसर दीजिए. पूरे सेंटेंस में आंसर. No, sentence. This movement, it was
महात्मा गांधी. Very good, very good. Now, third question. Third question. Type. Third question. Type. Which type? Yes. बोलो. Non-violent. Mass movement. It was a Sentence. Yes. It was It was a mass movement. Very good, very good. Point लिख लीजिए बाकी सेक्शन के बच्चे जिनको ये पॉइंट्स नहीं पता है, जिन्हें ये क्वेश्चन याद करना थोड़ा हार्ड लग रहा है, they will write these points. This will be very easy for you to learn this. पैराग्राफ में याद करना थोड़ी मुश्किल है, बट आप पॉइंट वाइज याद करते हो. when, who, type. अच्छा, नेक्स्ट बताइए. बिलीव. नेक्स्ट बोलिए बिलीव. बिलीव क्या था? They believe that British Empire was British Empire survived in India by Yes. the help of Indians. वेरी गुड. उसके बाद बिलीव वॉज द नो 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 अभी नहीं. do not cooperate, then Yes. the British Empire would collapse. वेरी गुड शो. वेरी गुड. महात्मा गांधी. बाकी लोग सुनिए, आंसर लिखिए. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश एम्पायर इज survived in India on the cooperation of Indians. British Empire is survived in India by the cooperation of Indians. If Indians will deny to cooperate with the government, then British Empire will collapse. फिर से सुनिए. महात्मा गांधी believed that British Empire was survived in India by the cooperation of Indians. If Indians will not cooperate, then British government, British Empire will collapse. अब हम चलते हैं मीनिंग. मीनिंग क्या है? बोलो शो. मीनिंग क्या है? not to cooperate. not to cooperate with Yes. हाँ, very good, very good. किसी बच्चे ने कॉर्पोरेट कहा, कॉर्पोरेट नहीं होगा. Not to. The meaning of non-cooperation movement was not to cooperate with the government. Not to cooperate with the government. और लास्ट आता है methods. Methods. What was the methods adopted? People The started boycott boycott of foreign goods, boycotts of of industry, boycott of schools, colleges. Titles and honors. boycott of foreign they renounced the Very title. Very good. boycott of Colleges. school and colleges and by students. वेरी गुड. तो इस तरह से हम लोग अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस वो चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है? चलिए सिविल डिसोबीडियंस में बोलो. When this movement was started? It was started on 12 March 1930. It was started in 1930. 12 मार्च. बच्चों में शुभ ने डेट याद रखा है. हमें मार्च बोलना है क्योंकि कभी कभी वो डेट भी पूछ देता है. नॉट ओनली ईयर. इट वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930. ठीक है? अब बोलो who started it? It was started by Mahatma Gandhi. Very good. It was started by
by Mahatma Gandhi. Type. It was a mass movement. It was a mass movement. Very good. Movement. Very good. अब चलो मीनिंग यहाँ बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे हम यहाँ हाँ not to obey the government, obey ना नहीं तो है ना, obedience, obey मीनिंग क्या है? not to obey the government. अब गवर्नमेंट ने क्या किया था? अब स्टोरी बताओ, स्टोरी मीनिंग हो गया, अब हम स्टोरी पे चलेंगे। क्या चलेंगे? स्टोरी क्या? Imposed high taxes on salt. The government imposed a law that the people cannot make salt. Very good, very good. Government imposed law that people cannot manufacture salt, but salt was the basic need of the people. Imagine, can you eat without salt? बिना नमक के खाना खा सकोगे? No, एक निवाला भी नहीं जाए, No, ma'am. है ना? So Gandhi decided to break this law. फिर से रिपीट करते हैं, फिर से, ठीक है? मीनिंग बता दी, not to obey the government, ठीक है? अब चलते स्टोरी पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed tax on salt. Now Indians cannot produce salt. So Gandhi ji decided to break this law. अब गांधी जी ने क्या किया? He along with कितने followers? 78 supporters. 78. 78 supporters. Supporter. मार्च करके गए। कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? Sabarmati From Sabarmati ashram to Dandi. साबरमती to Dandi. Yes, सानिध्य। Dandi. Very good, सानिध्य। साबरमती आश्रम टू दांडी। अब आपका ये एक मैप वर्क है। साबरमती आश्रम is located in गुजरात। और दांडी मार्च भी आप गुजरात में ही दिखाओगे। दांडी मार्च भी कहाँ दिखाओगे? गुजरात में, ठीक है? सॉल्ट लॉ, ब्रेक सॉल्ट लॉ, ये सारा क्वेश्चन आएगा तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग? गुजरात में दिखाएंगे। ओके, हम लोग इसका मैप वर्क एक क्लास में बनाएंगे। ओके, हम लोग मैप वर्क बनाएंगे एक क्लास में, ठीक है? अच्छा, तब तक आगे चलते हैं। अब फिर से आ जाइए, खत्म कीजिए, स्टोरी को खत्म कीजिए। साबरमती आश्रम से वे लोग कहाँ पहुंच गए? दांडी। Then he collected water from the sea and made salt, handful of salt. उसे गर्म किया, evaporate and made handful of salt. इतना नहीं बोलना पड़ेगा। He decided to break this law. He went from Sabarmati ashram to Dandi. After reaching there, he made handful of, मुट्ठी भर को क्या कहेंगे? Handful of salt. In this way, he broke the law. In this way, he broke the salt. फिर आता है मेथड में, यहाँ भी वही हुआ, बॉयकॉट, ठीक है? तो ये आपका 2 मास मूवमेंट आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। आज हम लोग चलते हैं अब न्यू चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज बताने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो चैप्टर है, जिसमें आपने क्या क्या मैंने कल कहा था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन याद करना।
तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपने याद किया क्या होगा people living in per square kilometer is called density of population. इस चैप्टर में we will read about हाँ वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओके अब क्या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड Is it distributed evenly or unevenly? Unevenly. Unevenly. Very good. Unevenly. Human population is concentrate in which place? And what are the factors which influence the human population? कहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा होगा जहां पे कि फर्टाइल सॉइल होंगे if the soil is fertile if the soil is fertile then people go to reside there and grow crops there ठीक है और क्या होगा if there is job opportunity यदि जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वहां पे लोग जाएंगे तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल फैक्टर में क्या है एक है फिजिकल फैक्टर एक है इकोनॉमिक फैक्टर फिजिकल फैक्टर में क्या है तो फिजिकल फैक्टर में है कि रिलीफ फीचर फिजिकल फैक्टर में क्या है रिलीफ फीचर हाई माउंटेन प्लेटो रॉकी प्लेटो दीज restrict human population whereas plains are the suitable place where people reside आप कहाँ रहते हैं हम लोग कहाँ रहते हैं प्लेन में कि प्लेटो में हम लोग कहाँ रहते हैं प्लेन में हम लोग कहाँ रहते हैं प्लेन में प्लेटो में प्लेन में रहते हैं ठीक है तो प्लेन आर द फेवरेबल लोकेशन टू रिसाइड डूइंग एग्रीकल्चर मीन्स डूइंग इरिगेशन इज ऑल्सो वेल इन प्लेन और क्या है ट्रांसपोर्टेशन है ना इज ऑल्सो अब आप माउंटेनस रीजन पे इट इज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स इट इज डिफिकल्ट टू मेक रेलवे लाइन्स जबकि प्लेन आर द सुटेबल प्लेस वेयर यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर वाटर तो वाटर के बारे में पहले ही मैंने बताया था कि वाटर जहां पर होंगे सॉइल फर्टाइल होंगे तो वहां पीपल वांट टू रिसाइड इसके ऑन द कॉन्ट्ररी डेजर्ट फ्रोजन लैंड those places are not suitable for the people due to harsh climate अब है climate is another factor hot and humid area distribution of population also affect on the climate अब extreme जहां पे है कहां पे Antarctica
अंटार्कटिका, पोलर रीजन, वहां पीपल डू नॉट लाइक टू रिसाइड देयर. क्यों? इट इज नॉट सुटेबल फॉर देम टू रिसाइड, है ना. हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, इक्वेटोरियल रीजन, कोल्ड डेजर्ट, Sahara desert, these are not overpopulated. These are not very populated. On the contrary, India and Bangladesh, monsoon region of India and Bangladesh attract large concentration of population because climate is favorable here. और vegetation क्या है? Equatorial forest, dense and inaccessible. एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एग्जांपल दे दो जल्दी से. वन एग्जांपल ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. Amazon बेसिन, Amazon बेसिन, ठीक है. ये है वन एग्जांपल ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. अब इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? Where you find minerals, mineral जहां मिलेंगे, that is that place is suitable because mineral से आपकी इंडस्ट्री सेटअप होगी. Mineral will use as a raw material for that industry. उसी तरह से जहां इंडस्ट्रीज है, the place where industries are there, people go to reside there. Migrate करके वहां चले जाएंगे. क्यों? For getting livelihood, for getting job, for earning money. उसी तरह से developed means of transport. You do not want to reside in the remote areas. The place where means of transport are found, you will go to live there. फिर है discriminatory government policies. People want to live where the government policy is good, favorable. जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, people do not want to live there. यहाँ पे आपका एक मैप दिया हुआ है जिसमें कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताए गए हैं, जिसमें आप की में यू कैन सी डिफरेंट कलर, है ना. एक कलर यूज हुआ है ग्रीन, बिलो 100 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर. येलो दिया हुआ है, ग्रीन कलर था वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो वेरी लो किधर है? इधर आपका ईस्टर्न इंडिया में वेरी लो है, आपको दिख रहा होगा बॉटल ग्रीन से, है ना. अरुणाचल प्रदेश और वो सब बहुत लो है. और येलो कलर 100 to 250 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, वो है लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. हर कोई अपने पेज में मैप को देखे, मैप को मैं समझना बता रही हूँ. नेक्स्ट है एक ऑरेंज कलर दिया हुआ है जो कि 251 to 500, ये मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ मॉडरेट है. और पर्पल जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन, जिसमें आपका वहाँ हाई डेंसिटी 501 to 1000. और नीचे साउदर्न इंडिया में आपका वो पर्पल कलर दिखाया जा रहा है जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. और एक है थोड़ा डार्क पिंक जैसा जहां अबव 1000 वेरी हाई, वो आपका बिहार और वेस्ट बंगाल है ना. वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल है, बिहार नहीं. तो ये वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. मैं बता दी, यहाँ जो पाई चार्ट दिया हुआ है या फिर जो बार ग्राफ दिए हुए हैं, वो भी प्रिंट होकर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है. जहां देखिए सेक्स रेशियो दिखाया गया है.
ठीक है, अभी तो मैं पढ़ाई नहीं सेक्स रेशियो, बट ये ग्राफ पढ़ना बता देती हूँ। इसमें से मान लो कि ये प्रिंट होकर आ गया कि इन विच ईयर सेक्स रेशियो क्या है, इन 1000 मेल हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी फीमेल वर देयर, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। 1000 मेल में 943 फीमेल है कि 927 है कि 941 है। तो इन विच ईयर सेक्स रेशियो वाज हाई, ये बार ग्राफ देखकर आप बताओ तो किस साल सेक्स रेशियो हाई था। Some years are given 1951, 1961, 1970, 2000, 1951 में था। यस पल्लवी संगम, यस पल्लवी संगम 1951 में 946 फीमेल वर देयर इन 1000 मेल। और सबसे कम कब था? 1991। 1991। हाँ, अगर लिखने आएगा कितना था तो क्या लिखोगे? 927। यस विपाशा, 927 फीमेल। तो ये पढ़ना सीखो, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बताती हूँ। फिजिकल इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। अच्छा, आज बुक नहीं लाई इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स टाइम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे 2021 से 2022 में दो टाइम बता दिया गया, एक ईयर 2021, एक ईयर 2022। दो फिक्स टाइम में जो नेट चेंज हुए पॉपुलेशन में वो भी परसेंटेज में इज कॉल्ड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। Growth rate of population increase when the birth rate increase, and when the death rate increase, growth rate of population decrease। समझ रहे हैं ना? बर्थ रेट बढ़ने से क्या होता है? ये अफेक्टेड होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना? जब बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट तो पॉपुलेशन विल इंक्रीज। when death rate is more than birth rate then population will decrease। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। फिर क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस के कॉम्पोजिशन में 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वो क्या क्या है? 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वो है एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट। एज स्ट्रक्चर क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन हमारे जिंदगी को क्या किया गया है? 3 पार्ट में बाय अकॉर्डिंग टू एज डिवाइड किया गया है। पहला है क्या? पीपल बिलो 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बच्चे क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, है ना? यू पीपल आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। कौन अर्न कर रहा है? आपके पेरेंट्स, और आप उनके डिपेंडेंट हैं। सेकंड जो हुआ 15 to 59। फर्स्ट क्या हुआ? बिलो 14। सेकंड हुआ 15 to 59, ठीक है? और थर्ड हुआ 59। ये है
structure. Age structure. Below 14 years, age 15 to 59 और above 59. अब मुझे बताइए कि ये तीन में कौन सा ग्रुप डिपेंडेंट है? Below 40 डिपेंडेंट हो एंड 59 से ऊपर जैसे हो जाते हैं कुछ लोग रिटायर कर जाते हैं तो उनके पास अर्निंग नहीं होती है या फिर एज हो जाता है जिनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिनका कोई पेंशन नहीं है तो वो क्या कर पाता है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पर है ना तो ये ग्रुप एंड ये ग्रुप डिपेंडेंट है और ये ग्रुप जो है ये नॉट डिपेंडेंट एंड रिप्रोड्यूस